Okay. Yes, something that may or may not happen. Okay. Chances and probability. Now see here. As for example, अभी आप कुछ दिनों से देख रहे हो रेनिंग, राइट? कभी रेन हो रही है, कभी रेनिंग नहीं हो रही है, इजंट इट? जैसे कल की और आज की बात करो, राइट? तो यस्टरडे इट वाज हैवी रेन, ओके, बट अभी फिलहाल अभी के लिए देखो तो अभी उसके चांसेस कम लग रहे हैं, बट यस डेफिनेटली उसके चांस होंगे, हाँ या ना? नहीं तो रेन के होने के चांसेस हैं भी और नहीं भी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके। ये कई बार अभी तो स्कूल और वो सब बंद है, आपको याद हो तो जब भी रेनी सीजन आती थी, राइट, ये टाइम पे आप क्या करते थे? आप स्कूल में अम्ब्रेला, रेनकोट लेके जाते थे? यस और नो? बिकॉज देर इज अ प्रोबेबिलिटी इट कैन हैपन और नॉट। अगर रेन हुई तो आपको अम्ब्रेला और रेनकोट काम आएगा, अगर नहीं हुई तो काम नहीं आएगा। यस और नो? ओके। सो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आप पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन पढ़ते हो, राइट, वो क्वेश्चन आपको बहुत टफ लग रहा है, तो आप उसको सोचते हो कि ये एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा, राइट, इट विल कम इन एग्जाम और नॉट। फिर आप भगवान से प्रे करते हो, राइट, यू प्रे टू गॉड दैट गॉड प्लीज 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 दिस क्वेश्चन should not come in exam like that, isn't it? Students, please tell me about this. So this is all about your chances, isn't it? कि वो होगा या नहीं होगा, इट इज अनसर्टेन, राइट, इट हैपन और मे नॉट हैपन। अब उसमें एक सबसे पहले टर्म आपको जो पढ़नी है वो है आपकी टर्म इक्वली लाइकली आउटकम्स। ओके। माय वॉइस इज ब्रेकिंग? टेल मी इफ इट इज ब्रेकिंग, आई कैन ट्राई अनदर ऑल्टरनेटिव। ओके, इट इज ब्रेकिंग ओनली फॉर निष्का। ओके, इक्वली लाइकली आउटकम्स। नाउ सी हियर, फर्स्ट टेल मी, this I can take one example of. Now let me take one example of coin. Right. Right. I'm taking one example of coin. Now, if I'm tossing this coin, now how many chances are there? What are the possible outcomes? Tell me. Right. If I toss a coin, I will get either heads or tails, isn't it? If I toss a coin, I'll get either heads or tails. Okay. So equally likely outcomes, right?
Suppose I am tossing a coin, right, in so many times, and I am finding number of heads and number of tails. Okay, so number of tosses, number of heads. This you can do this experiment on this Sunday. Number of tails. Okay, and you can tell me what you got. So suppose I am tossing a coin 50 number of times, right? It may chance I can get anything, right? This is your experimental probability. Suppose I am getting 27 number of times heads and 23 number of times tails. Now suppose I am increasing my number of tosses from 50 to 80. Okay, so now it may happen that in 80 times number of tosses, I can get 38 heads and 42 tails, right? Anything can be happen. Now, if I take number of tosses 100 times, so number of heads will become 48 and number of tails will become 52. Okay. So here if you observe that if you increase your number of tosses, right, if you increase your number of tosses, the number of heads are and number of tails are becoming equal or not? 48, 52, right? They're going almost equal. Are you getting my point? They're coming closer to each other. Yes or no? Okay. This you can do with dice as well, right? Exactly. If you see history, right? So in history, in different parts of world, different mathematicians have done this experiment. Right. That all data of different mathematicians will learn in class 9. Right. That different mathematicians have done this experiment. Right. And what they found, all different mathematicians have found that even they have done these experiments millions times, right? Lakhs of times. And they found that, yes, that both are becoming closer to each other, both are becoming 50-50% of each other. Okay. So now if I link chances, so this is your, that's why it is called equally likely outcomes. So here number of heads and number of tails are having equal likely chance to happen. Right. If I toss a coin, so there are 50% chance that I will get head and 50% chance that I will get tails. Is it clear? So this is your equally likely outcomes. Okay. Now, if I link chances to probability, okay, so see here, then I will give you its definition. So now let me show you. How we can link chances to probability. Suppose I am taking this example only, right? Tossing a coin. Now I am getting heads and tails. So how can you represent 50% chances, right? If I am tossing a coin and what are chances of getting heads? Tell me. It is half or not? Right? Yes. 50%. 50% means 50 by 100, which is equal to half. Same here for tails also 50%. 50 by 100, which is equal to half. Is it clear? Okay. Please give me some response. Now,
either one head or one tail. No, Samarth. Exactly how we are defining this? See, right? You can, yes, definitely you are going to get one head or one tail only, right? You are not going to get a half head or half tail, right? But what are the chances of getting head? 50%, na? Right? Means there are two outcomes, heads and tails. From there, you can get either head or either tail. So from two, you can get only one, right? Total, there are two outcomes. From two, you can get, from two possibilities, you can get one possibilities. Huh. If you toss two coins, then what is the probability? If you toss three coins, then what is the probability? Then we will see that. Okay. Good morning, Nutan. आपने अभी join किया? Why so late? Okay. पहले इतना क्लियर हुआ? Okay. ये 50% सबको क्लियर है? Now I am giving you few technical terms for probability first. Okay. Then I will give you definition of probability. Right. Few definitions you will learn in class, or the definitions which I am telling you. Few definitions are of class 9, but you should learn those definitions. First, I will give you definition of random experiment. Then sample space. Then event. And finally, I will give you definition of probability of an event. Now, so what is the meaning of random experiment? See, that you cannot predict, whose outcomes cannot be predicted exactly in the advance. Right. As for example, if I'm tossing a coin, can you predict it will head or tail? Means can you exactly predict that अगर मैं अभी टॉस कर रहा हूं तो अभी हेड आएगा ही आएगा? Okay. So random experiment is one whose outcomes cannot be predicted exactly in advance. रैंडम एक्सपेरिमेंट आपका ऐसा है कि जिसका आउटकम आप कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. इज वन हुज आउटकम्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड एग्जैक्टली इन एडवांस. नाउ सैंपल स्पेस. Total number of outcomes, right, or all, not total number of outcomes, right, all possible outcomes of random experiment form sample space. ये पता चला पहले, राइट?
रैंडम एक्सपेरिमेंट के सारे एग्जांपल देने की जरूरत है? रैंडम एक्सपेरिमेंट क्लियर है ना? राइट, कि जिसके आप आउटकम्स प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ओके, चलो रैंडम एक्सपेरिमेंट के कुछ एग्जांपल। एज फॉर एग्जांपल, टॉसिंग अ कॉइन। राइट, आप नहीं बता सकते एग्जैक्टली कि अभी हेड आएगा या टेल आएगा। रोलिंग अ डाई, राइट, या डाइस, डाई और डाइस, व्हाटएवर यू कैन टेक। ओके, नाउ थर्ड, picking a card from deck of 52 cards. You know 52 cards, right? Cards के बारे में सबको पता है, deck of 52 cards, students. Okay, वो 52 cards के बारे में भी बताऊंगा, बट अभी के लिए इतना रखो। ओके, चलो, प्लेइंग कार्ड्स, राइट, तो अभी के लिए इतना ठीक है। तो ये आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गए। नाउ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस का एग्जांपल। तो टॉसिंग अ कॉइन के लिए आपका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? कितने आउटकम्स हैं कॉइन के लिए? हेड्स और टेल्स? राइट, तो पहले आपको ऑप्शन मिलेंगे इधर हेड्स और टेल्स, ये दो आउटकम आपको मिलेंगे। नहीं, कितने सैंपल स्पेस है? ऑल पॉसिबल आउटकम्स ना। राइट, रोलिंग का डाई में आपको क्या मिलेगा? 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये आपके सैंपल स्पेस हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, फर्स्ट केस में हेड्स और टेल्स, और सेकंड में 1 2 3 4 5 6, ये पता चल रहा है पहले? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ओके, चलो अब इवेंट। सो इवेंट ऐसे डिफाइन है, कलेक्शन, या आप कलेक्शन को भी बोल सकते हो, ईच आउटकम को भी बोल सकते हो, समझा रहा हूं। ईच आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट और, right, this is a symbol of or, a collection of outcomes or a collection of outcomes make an event. Okay, so आपके एक्सपेरिमेंट का हर एक आउटकम वो एक इंडिविजुअल इवेंट है, और कलेक्शन ऑफ आउटकम भी एक इवेंट है। तो अब आप पूछोगे सर कैसे, उसका भी एक एग्जांपल दे रहा हूँ। चलो, एज फॉर एग्जांपल टॉसिंग अ कॉइन। तो कॉइन के लिए आपकी इवेंट है, राइट। अगर मैं बोल रहा हूँ हेड, हेड आने की इवेंट क्या है? तो हेड आने की इवेंट है, उसको मैं एच नाम दे रहा हूँ सपोज। टेल्स आने की इवेंट क्या है? उसको टी नाम दे रहा हूँ। तो ये भी एक इंडिविजुअली इवेंट है, ये भी एक इंडिविजुअली इवेंट है। ईच आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज इवेंट। और कलेक्शन ऑफ आउटकम, अब कलेक्शन ऑफ आउटकम के लिए, हाँ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, रिलैक्स रिलैक्स, डाइस, राइट, सपोज मैं डाइस ले रहा हूँ। मैं आपको ये वो बता रहा हूँ कि एक ऐसी इवेंट डिफाइन करो जिसमें सिर्फ डाइस पे आपके इवन नंबर्स हैं, टेल मी। राइट, इवन नंबर्स कौन कौन से हैं? 2 4 6। ओके, ऑड नंबर्स कौन से हैं? ऑड नंबर्स कौन से हैं? 1 3 5, राइट। और डाइस के कॉइन के टोटल आउटकम कितने हैं? एच एंड टी। डाइस के टोटल आउटकम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, इजंट इट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, अब मोरल ऑफ द स्टोरी, इसको समझने की कोशिश करो, राइट, समझो यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने डिफाइन किया सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब क्या हुआ? ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स विल गिव यू सैंपल स्पेस। तो अगर मैं कॉइन और डाइस की बात करूं, तो कॉइन और डाइस में ऑल पॉसिबल आउटकम्स कौन से हैं? हेड्स टेल्स। और डाइस में आपके 1 2 3 4 5 6। इतना क्लियर? पहले सैंपल स्पेस, ये सैंपल स्पेस है। अभी जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो सैंपल स्पेस है। इतना क्लियर हुआ? ओके, अब इवेंट। ईच आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज इवेंट। इवेंट मतलब आपका क्वेश्चन में जिस तरीके से डिफाइन किया गया है, ईच आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज इवेंट, और अ कलेक्शन ऑफ आउटकम्स इज इवेंट। ईच आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज इवेंट, और a collection of outcomes is an event. Each outcome of an experiment or a collection of outcomes is event.
तो अगर आप ईच आउटकम की बात करो यहाँ पे, ओके, तो हेड आने का आउटकम क्या है, एच, टेल्स आने का आउटकम क्या है, टी। तो ये हेड आने का आउटकम एच, वो भी एक इवेंट है, टेल्स आने का आउटकम वो भी एक इवेंट है। ओके, इफ आई एम आस्किंग यू दैट फाइंड द चांसेस ऑफ गेटिंग हेड, तो वहां पे आपकी इवेंट हो जाएगी हेड। फाइंड द चांसेस ऑफ गेटिंग टेल्स, वो आपकी इवेंट हो जाएगी टी। अब अगर मैं आपको पूछ रहा हूँ फाइंड द चांसेस ऑफ गेटिंग इवन नंबर, तो इन सब में से इवन नंबर कौन सा है, 2, 4 एंड 6। तो आप ये इवन नंबर 2, 4, 6 लिख रहे हो, तो ये कलेक्शन ऑफ आउटकम्स हुआ। दिस इज योर वन कलेक्शन ऑफ आउटकम्स जिसमें आप सिर्फ इवन नंबर का कलेक्शन कर रहे हो, राइट। सो दिस इज ऑल्सो योर इवेंट, दैट फाइंड द चांसेस ऑफ गेटिंग इवन नंबर, दिस इज योर इवेंट। अगर आपको ऐसा पूछा जा रहा है फाइंड द चांसेस ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, दिस इज ऑल्सो इवेंट। ये चीज क्लियर हो रही है, प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। फाइंड द चांसेस ऑफ गेटिंग इवन नंबर और फाइंड द चांसेस ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। क्या ये इवेंट्स क्लियर हैं स्टूडेंट्स? ओके, चलो सानवी, इज इट क्लियर? ओके, वेरी गुड। चलो अब फाइनल डेफिनेशन, प्रोबेबिलिटी। ओके, फिर प्रोबेबिलिटी की हम फॉर्मूला देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। Probability of an event. So probability of an event is defined as number of outcomes that make an event or favorable number of outcomes divided by total number of outcomes of an experiment. Right. Number of favorable outcomes, number of favorable outcomes of an event or to an event, number of favorable outcomes to an event. एक इवेंट के लिए आपके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कौन से हैं और कितने हैं, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। सो दिस इज हाउ योर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज डिफाइंड। यही उसकी डेफिनेशन है और यही आपको याद रखना है, राइट। और ये बहुत 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 काम आएगी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू एन इवेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ओके, अब समझो यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कॉइन का एग्जाम्पल, जिसका हमने सैंपल स्पेस लिया, इवेंट ली, तो अगर मुझे इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, समझना, अगर मुझे यहाँ पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ये कैसे आ गया, हाँ यस साफवान, गुड ऑब्जर्वेशन। चलो यहाँ पे, तो कॉइन में प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, अगर ये अभी आपने डेफिनेशन देखी, अब ये डेफिनेशन से अगर मान लो आपको हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। हाँ yes Tejas, I live in Vidyanagar. Why, what happened? Okay, so where was I? So probability of head, tell me number of favorable outcomes. चलो head के लिए favorable outcomes कितने हैं, how many favorable outcomes are here, one or not, right? Number of favorable outcomes to the event divide by total number of outcomes, total number of outcomes कितने हैं, 2, 1 by 2 or not? Okay, so probability of head is 1 by 2, right? चलो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स क्या है,
Okay. Okay. How many favorable number of outcomes? Favorable number of outcomes is 1 and total number of outcomes is 2. So you can write probability in fraction as well, right? आप probability को fraction में भी लिख सकते हो, आप probability को percentage में भी लिख सकते हो. ऐसा कोई hard and fast rule नहीं है कि आपको इसी में लिखना है, right? तो ये आपका 50% हो जाएगा, ये भी आपका 50% हो जाएगा, but generally fraction को हम prefer करते हैं, right? क्योंकि उसकी definition भी fraction में defined है, okay? तो generally fraction को chance मिलता है. चलो dice के बारे में बताओ. What is the probability of getting even number on die? If I am rolling once, what is the probability of getting even number? Number of, what is the definition of probability? Number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. चलो number of favorable outcomes कितने हैं यहाँ पे? How many number of favorable outcomes are here? For even number के लिए number of favorable outcomes कितने हैं? 1, 2 and 3. Okay. Total number of outcomes. How many total number of outcomes we are having? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total number of outcomes 6. So 3 by 6 is equal to half. तो अगर मैं डाई को रोल कर रहा हूं तो 50% चांस है कि इवन नंबर आएगा. ये चीज क्लियर हुई? ओके. चलो इन सेम वे ऑड नंबर के लिए बात करते हैं. तो अगर ऑड नंबर आने की मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहा हूं, ओके, सो इट इज 1, 3, 5. 3 डिवाइड बाय टोटल 6 इज इक्वल टू हाफ और नॉट. ओके. तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी भी हाफ, ऑड की भी हाफ. चलो अब मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ अगर 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी विल गेट 1 ऑन अ डाई? ओके. चलो टोटल फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, 1 आउटकम कितनी बार आ रहा है? फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स इज ओनली 1. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 by 6 और नॉट? हाँ या ना? ओके, वेरी गुड. चलो 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2? 2 कितनी बार आता है? नहीं, सोचो. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज 1 ओनली डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6. ओके. इज इट क्लियर? राइट. सो प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट क्लियर हुआ सबको? राइट. चलो एक लास्ट इसके लिए दे रहा हूं, पहले डाई के लिए. प्राइम नंबर. चलो डाइस पे प्राइम नंबर कितने हैं? टेल मी. प्राइम नंबर कौन कौन से हैं ऑन डाई? 2, 3 and 5. चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर. 3 by 6 which is equal to half. So this is all about probability. Probability के सारे कंसेप्ट क्लियर? राइट. तो आज आपको फॉर्मूला बुक में क्या करना है, ये सारी चीजें एक बार लिखनी है, बट ये प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन 5 टाइम्स लिखनी है. प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन 5 टाइम्स लिखनी है, बाकी सब एक बार लिखना है. ओके. ये सारी चीजें क्लियर हुई? व्हाट इज चांसेस, प्रोबेबिलिटी हमने नॉर्मल डिस्कशन से शुरू किया, इक्वली लाइकली आउटकम्स पढ़े, लिंकिंग चांसेस टू प्रोबेबिलिटी पढ़े, फिर वहां से रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस, इवेंट क्या होता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हमने पढ़ा. ओके. सो आज का आपका होमवर्क होगा, फॉर्मूला बुक में सारी चीजें आपको 1 टाइम लिखनी है, बट ये आपको 5 टाइम्स लिखना है. ओके. चलो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं. सो 8M5.4 सैंपल स्पेस एक बार वापस दिखाऊं? ओके. Yes, probability is also your way of representation of data. Exactly, not representation but analysis. Okay. एग्जाम्पल, हाँ एक बार लिख लेना, फॉर्मूला बुक में एग्जाम्पल भी लिख देना. राइट. लेट मी शो यू सैंपल स्पेस वंस अगेन. सैंपल स्पेस मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, समझो. ओके. आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी आउटकम्स हैं, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, all possible outcomes of random experiment, it is called your sample space. ओके. अभी ऑल पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से हो सकते हैं? अगर आप कॉइन ले रहे हो तो कॉइन में हेड्स आएगा या टेल्स आएगा, उसके अलावा और कोई ऑप्शन है? नो.
हेड्स और टेल्स ही आएगा। अगर आप डाइस ले रहे हो तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 नंबर्स ही आएंगे। क्या और कोई ऑप्शन है? टेल मी, डू वी हैव एनी अदर ऑप्शन? नहीं, सो दैट इज योर सैंपल स्पेस, दैट्स इट। आपके पास जितने ऑप्शन है वो सारे आप लिख दो। ओके, तो सैंपल स्पेस क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट। चलो अब ऐसा ऑप्शन ही नहीं होगा ना, आप कॉइन को टॉस कर रहे हो तो इधर हेड या टेल्स आएगा, राइट? कुछ ना कुछ तो आएगा ही। नाउ इन क्लास एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, answer the following question. First, give two example of random experiment. क्या वो आप घर से कर लोगे? राइट, वहां पे जो मैंने दिखाया वही आपको इधर लिख देना है। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या लिख सकते हो? तो साफवान वो कॉइन रोल करके वापस एक बार तो स्टेबल होगा ना, कभी ना कभी तो गिरेगा ना कॉइन। ओके, दिस यू कैन डू फ्रॉम होम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वॉवेल सिलेक्टेड एट रैंडम इन द इंग्लिश लैंग्वेज एज आई। ओके, probability that vowel selected from English alphabet as I. ओके, आपको I को सिलेक्ट करना है। चलो, टू एग्जांपल्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, टॉसिंग अ कॉइन, रोलिंग अ डाई। चल, आपको दे रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ वॉवेल सिलेक्टेड एट रैंडम इन इंग्लिश लैंग्वेज। चलो, तो सबसे पहले सैंपल स्पेस आइडेंटिफाई करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में वॉवेल्स कितने हैं? वॉवेल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज आर कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। Right, now probability of selecting I, right, probability of selecting I। चलो, वो क्या होगा? हाउ मेनी फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर आई कितनी बार आ रहा है ए आई ओ यू में? 1 टाइम। एंड हाउ मेनी आर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स? 5, so 1/5। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ थर्ड, define the equally likely events। चलो, who will tell me equally likely events? आसान है equally likely events, right? The events which are having equal chances of outcomes, right, or equal probability। ओके, तो वो आप लिख सकते हो, अपने वर्ड्स में लिखना, नहीं पता चले तो मुझे पूछना। ओके, जस्ट ट्राई। सेकंड क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट अंडर अप्रोप्रिएट हेडिंग इन द गिवन टेबल बिलो। राइट, तो आपको एक टेबल दिया गया है, जस्ट मैं पहले वो टेबल लिख रहा हूँ, फिर आप मुझे बताओ कि वो किस में आएगा। ओके, सो टेबल में आपकी फर्स्ट कॉलम है सर्टेन टू हैपन, ऐसी इवेंट जो होगी ही होगी। राइट, इट्स सर्टेन टू हैपन। कुछ इवेंट ऐसी हैं विच आर इम्पॉसिबल टू हैपन, जो होंगी ही नहीं। ओके, विच इज नॉट पॉसिबल कि वो होंगी। एंड फाइनली मे और मे नॉट हैपन, जिसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, राइट, जिसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, मे और मे नॉट हैपन। ओके, सो अब मैं बता रहा हूँ सारी इवेंट्स, जस्ट आप मुझे बताओ कि वो किस में आएंगी। राइट, आपको बस लिखना है इन योर chat box, either it is column 1, column 2 or column 3। This is your column 1, column 2, column 3। Sure, getting the sum of angles of a triangle is 180, किस में आएगा? sum of angles of triangle is 180, right, इसमें।
certain. India winning a cricket match against Pakistan. India winning a cricket match against Pakistan. Right, column 3. Very good. May or may not happen. Sun setting in the evening. Sun setting in the evening. Right. Definitely वो certain है. Next, getting 7 when a die is thrown. Getting 7 when a die is thrown. Right, impossible क्योंकि dice पे तो आपके 1 to 6 ही है. Sun rising from the west. Sun rising from the west. Winning a racing competition by you. Okay, winning a racing competition by you. Yes, may or may not happen, right? Winning a racing competition by you. तो चलो ये सारी चीजें आपको पता चल रही है. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 3. चलो अब समझो यहाँ पे when two dices are rolled. Okay. When two dices are rolled, आपको क्वेश्चन में दिया गया कि two dices यहाँ पे rolled हो रहे हैं. When two dices are rolled, right. First, list the outcomes in which the sum of the numbers appearing is odd. वो पहले बाद में करते हैं. चलो पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे. टेल मी. अगर दो डाइसेस में रोल कर रहा हूँ, राइट. कोई एक स्टूडेंट पहले पूछ भी रहे थे. चलो अगर ये आपका कॉइन है, आई सपोज दिस इज योर कॉइन, राइट. नाउ आई एम टॉसिंग दिस कॉइन फॉर वन टाइम. अगर वन टाइम टॉस कर रहा हूँ तो मेरे पास कितने आउटकम्स हैं. आइदर हेड्स और टेल्स. आई सपोज दिस इज योर 1 रुपी कॉइन. हाँ या ना. अगर मैं पहली बार हेड कर रोल कर रहा हूँ, नहीं सॉरी डाइस है ना, ये कॉइन पे आ गया, माय मिस्टेक. ओके. चलो डाइस है, डाइस. ओके. अगर डाइस में फर्स्ट टाइम रोल कर रहा हूं तो मेरे पास कितने आउटकम्स हैं. 1 2 3. 1 2 3 4 5 एंड 6. ओके. 6 आउटकम्स है मेरे पास अगर डाइस में पहली बार रोल कर रहा हूं तो. चलो अब सेकंड टाइम रोल करूंगा. मान लो कि पहली बार 1 आया, पहली बार 1 आया, अब सेकंड टाइम रोल करूंगा तो कितने ऑप्शन है मेरे पास. 1 2 3 4 5 6. इजंट इट. राइट. ये यहाँ पे मेरी पैर कौन सी बनेगी. 1 1 1 2 1 3. राइट. इसे अच्छे से लिख दूं मैं. आपका बनेगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6. इजंट इट. इतने आउटकम्स मिलेंगे मुझे. 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6. प्लीज म्यूट योरसेल्फ एवरीवन. ओके. इतना पहले क्लियर है. चलो इन सेम वे 2 के साथ कितने आउटकम पॉसिबल है. 2 के साथ भी 6 आउटकम पॉसिबल है. 1 2 3 4 5 6. तो यहाँ मुझे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6. ये 6 आउटकम्स मिलेंगे 2 के साथ भी. प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स यस और नो. पता चल रहा है स्टूडेंट्स. नहीं जाग रहे हो ना, सो तो नहीं गए. राइट. यस वेरी गुड. चलो इन सेम वे अब 3 के साथ, राइट. विथ 3 हाउ मेनी आउटकम्स आर पॉसिबल. अगेन 1 to 6 or not. Right. With each and every number 1 to 6 outcomes are possible or not. With 4 also 1 to 6. With 5 also 1 to 6. And with 6 also 1 to 6. So that means for each and every outcome there are 6 outcomes possible. Okay. So I'll get 6 pairs for each and every outcome. So total outcomes कितने होंगे. ओके. हाँ एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ. वेट.
समझो यहाँ पे। तो ये जब भी आपके पास है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6, ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। इसका मतलब क्या हुआ, पहली बार आपके डाइस पे 1 आया, समझो पहली बार आपके डाइस पे 1 आया। अब 1 के साथ आपके पास कितने ऑप्शन है, क्या क्या नंबर आ सकता है। 1 के साथ 1, राइट, पहली बार 1 आया, राइट, फर्स्ट टाइम यू गॉट 1 ऑन डाई, राइट। नाउ सेकंड टाइम ये 1 के साथ कौन कौन से ऑप्शन है मधुसूदन, समझो। सेकंड टाइम क्या क्या आ सकता है, सेकंड टाइम 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 4 5 6, 6 के 6 आ सकते हैं, आया ना, नहीं, 3 6 में से कोई भी एक आ सकता है ना मधुसूदन, नहीं, तो टोटल ये 1 के साथ पैर कितनी बन जाएंगी 6, 1 के साथ ये 6 पॉसिबिलिटी है। इन सेम वे 2 के साथ भी तो 6 पॉसिबिलिटी है। इन सेम वे 2 के साथ भी तो 6 पॉसिबिलिटीज है। ओके, 3 के साथ भी 6 पॉसिबिलिटीज है, 4 के साथ भी 6 पॉसिबिलिटीज है, 5 के साथ भी और 6 के साथ भी, सो देर आर टोटल 36 पॉसिबिलिटीज। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं मेन। Now list the outcomes in which the sum of numbers is appearing is odd. सम ऑफ नंबर ऑड होना चाहिए। चलो बताओ इन सब में से किस पे सम ऑफ नंबर ऑड है। 1 + 1 2, 1 + 2 3, क्या ये होगा, ये 3, राइट। 1 + 3 4 नहीं, 1 + 4 5 ऑड, 1 + 6 ऑड, ओके। नाउ देन 2 + 1 ऑड, 2 + 3 ऑड, राइट, 2 + 5 odd, then again 3 + 2 odd, 3 + 4 and 3 + 6। Are you getting my point students? पता चल रहा है ये क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन आपको ये लिखना है, वैसे आउटकम लिखना है जिसका सम ऑड हो, तो ये सारे आउटकम्स आएंगे 4 + 1 5, 4 + 3 7, 4 + 5 9, राइट। जो भी हाईलाइट कर रहा हूँ वो सारे आ जाएंगे, राइट। 5 + 2 7, 5 + 4 9, 5 + 5 11, 6 + 1 7, 6 + 3 9 and 6 + 5 11। इज इट क्लियर? जस्ट आपको इतने लिखने हैं, ये सारे आउटकम्स, ओके। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल विच इज ऑड, राइट। चलो अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल विच इज ऑड। पहले इसका आंसर दो, चलो ऑड कितने आंसर्स में आंसर आ, मतलब कितने में हमारा आंसर ऑड आ रहा है, सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, right? How we can find probability of getting odd number? Probability of their total should be odd. So favorable number of outcomes divided by total number of outcomes. हर बार आपको ये डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। जब भी आप प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कर रहे हो स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी। पता चल रहा है हाँ या ना, राइट। सो यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, जस्ट काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 15 कैसे हुए, 18 काउंट अगेन, 18 by 36 which is equal to half. Now third, list the outcomes in which sum of numbers appearing is less than 5। चलो लेस देन 5 हो वैसे करने, अरे कोई नहीं उसमें क्या है, मैथ्स इज ऑल अबाउट मेकिंग मिस्टेक्स एंड लर्निंग फ्रॉम देम, राइट, सो डोंट वरी। चलो ये बताओ, list the outcomes in which the numbers appearing is less than 5, तो 1 2 होगा, राइट, 1 3 1 4 होगा नहीं, it should be less than 5, ओके। 2 1 होगा, ओके, 2 2 होगा, यस। 3 1 होगा, 3 2 होगा नहीं, राइट। इसके बाद 4 1 नहीं, सो सम शुड बी लेस देन 5, सम शुड बी लेस देन 5, तो ये आउटकम्स आएंगे स्टूडेंट्स। पता चल रहा है कुछ तो बोलो, राइट। Now in next fourth we need to find probability of getting a total which is less than 5. So probability of getting a total which is less than 5, it is defined as
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। चलो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं यहाँ पे? टेल मी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 5 or not? Right, total number of outcomes 36. So this is our answer. पता चला क्या हो जाएंगे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस? ओके, सो आज का आपका होमवर्क रहेगा फॉर रेगुलर बुक, इन क्लास एक्सरसाइज में आपके रिमेनिंग क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन 3 तक कराया है। ओके, क्वेश्चन 4 to 8 तक आपको करना है। हाँ यस सानवी, आस्क मी, क्या डाउट है? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। और होमवर्क एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 to 5 है, राइट? वो सब ट्राई करो, फिर मंडे आपको कराऊंगा इसमें जो भी हो, और उसके नेक्स्ट संडे आपका एग्जाम रहेगा। Sir, हाँ यस सानवी। sir, in number of favorite outcomes, it should be 1, no, sir? फॉर विच केस? Sir, yes, 5 by 36. Why 1? There are 5 outcomes, na? 1 2 3 4 5. There are 5 outcomes in which we are getting total less than 5. Why you are telling 1? Tell me. What do you mean by number of favorable outcomes? Sir, how many times then it will occur, sir? For that event, right? For that event, how many outcomes we are having, isn't it? Number of favorable Yes. outcomes means how many outcomes in that event. What is this event? Total less than 5. So in this event, how many outcomes we are having? Outcome number 1, outcome number 2, outcome number 3, outcome number 4, and outcome number 5. So there are 5 outcomes in for this event, which is total less than 5. Is it clear now? Okay, sir. Okay. Now Rohan is asking something what is unbiased, right? Because in next question it is there unbiased. Unbiased means जो biased नहीं है, right? वो आपका fair coin है. Unbiased means unfair. ओके, आपने शोले मूवी के बारे में सुना है? शोले मूवी देखी थी? टेल मी, किसी ने? जय वीरू, वेरी फेमस मूवी। तो उसमें कॉइन को टॉस करते हैं अमिताभ बच्चन पूरी मूवी में, और एंड में पता चलता है कि वो कॉइन तो बायस था, उसमें दोनों जगह पे हेड था, राइट? वो चीटिंग, जो हम चीटिंग करते हैं दैट इज कॉल्ड बायस्ड। इसमें दोनों जगह पे आप इधर हेड या वो रख रहे हो, ओके, टेल्स। सो अनबायस्ड मींस फेयर कॉइन, सॉरी, अनबायस्ड मींस वो कहीं भी बायस नहीं है, इट इज योर फेयर कॉइन। ओके, इज इट क्लियर? चलो, आपके स्कूल की क्लास कितने बजे है? टेल मी, स्कूल कितने बजे शुरू होगा? 9:30. Okay, so be ready for Kahoot. Open your Kahoot app or go on play.kahoot.it. Okay, be ready with your Kahoot app. Let us play Kahoot now. हाँ, unbiased means fair, right? Fair coin. Fair coin मतलब जो normal coin होता है वो, उसमें कोई भी आपने cheating नहीं की है. There is no cheating in that. Okay. हाँ, सिर्फ सिंबल से दिखेंगे क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने हैं। ओके, क्वेश्चन यहाँ से देखने हैं। क्वेश्चन स्क्रीन से दिखेगा और मोबाइल ऐप में सिर्फ सिंबल दिखेंगे। ओके, ऐप आपने डाउनलोड किए नूतन पहले? हैव यू डाउनलोडेड दैट ऐप? हाँ, तो ऐप को ओपन करो, पहले ऐप को ओपन करो, मैं बता रहा हूँ क्या करना है। जस्ट ओपन दैट ऐप।
सो दिस इज योर कोड, राइट। अब वो ऐप में ये पिन डालो 303298, दिस इज योर पिन फॉर द गेम 303298, सी 303298, you can see on screen, right? Sorry, game pin is changed now, 584131. Okay, 584131. ओके, रजत ने ज्वाइन कर लिया। रजत गेम खेलने में सबसे पहले है, पढ़ाई में भी इतना ध्यान दो, कभी क्लास में भी रिप्लाई कर लिया करो। ओके, रजत, समर्थ, आदर्श, सांकेती, निकिला, शिवांश, साफवान, गौस, मधुसूदन, अपूर्वा, तेजस, प्रांजन, रोहन, तेजस, ओके, प्रांजन, वर्षा, जैलिन, निष्का, पीयूष। ओके, जल्दी जल्दी ज्वाइन करो। राइट, नूतन है और सानवी, आप बाकी हो ना, जल्दी जल्दी ज्वाइन करो। ओके, नूतन इज हियर। अब कौन बाकी है? बस सानवी। सानवी, डू इट क्विकली। सर कोड सर। कोड ये है ना 584131, कोड इज 584131। Okay, Sanvi is here. So let us start the game now. Now this is on your graph and probability, right? Sir, Graph और probability sir, का wait. Okay, तेजस, गेम इज ओपन। अभी मैं इसको पॉज नहीं कर सकता, बट आप ज्वाइन कर सकते हो, राइट। जस्ट एंटर दिस पिन 584131। Okay, probability of getting an even number when we roll a unbiased die. एक अनबायस्ड डाइस का आप रोल कर रहे हो तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ओके, तेजस, यू कैन स्टिल जॉइन दिस गेम 584131। एग्जैक्टली, बस स्टार्ट हो जाता है फिर हम पॉज नहीं कर सकते। ओके, वन हाफ आज ही हमने देखा, राइट। सो तेजस, हैव यू जॉइन गेम? Yes, sir. ओके, चलो अभी मैं आगे जा रहा हूँ। ओके, सो लेट अस सी स्कोरर्स। सो फर्स्ट शिवांश, देन सांकेती, समर्थ, आदर्श एंड रोहन। ओके, नेक्स्ट मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चन है, इसमें जितने आंसर है उतने आप सिलेक्ट कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट 0, 1, एनीथिंग बिटवीन 0 and 1, और नोटा। नोटा मीन्स नन ऑफ अबोव, राइट। सोचो, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट। अभी एक एग्जांपल में हमने सारे इवेंट्स को क्लासिफाई किया, श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, राइट। यस, 1, राइट। बहुत जल्दी सबने आंसर दे दिया, वेरी गुड। So probability of sure event is 1. That means आप सबको बहुत अच्छे से पता चल रहा है, very good. So now scores are same only.
Shivansh, Sanketi, Samarth, Adarsh, and Rohan. And Safwan is the highest climber, 3 places. Okay, next. What is the probability of an impossible event? बोलो, impossible event की probability क्या होगी? 0, 1, anything between 0 and 1 or nota? Probability of an impossible event. Sir? Yes? Sir, can you repeat again? What is the probability of an impossible event? खत्म हो गया अभी. 0. Right? Impossible event की probability 0. So now scores are Shivansh, Samarth, Rohan, Varsha, and Jalin. Okay, good. Now third question, fourth question. See here. Number of students in 2005-6 in the following bar graph. अरे bar graph यहाँ पे visible नहीं है. Wait. हाँ, 2005-6 में कितने number of students हैं? 2005-6 में कितने number of students हैं? थोड़ा zoom करके दिखा रहा हूँ आपको. Right, you can see. 2005-6 में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है? 150, 200, 250 और 300. ओके, 2005-6 में यू कैन चेक. ओके, यस, 250, राइट? एवरीवन गॉट राइट. नेक्स्ट. So now Shivansh, Varsha, Samarth, Jalin, and Tejas. Tejas is also in the game, and Adarsh is the highest climber for this question. Right, now last question of today's Kahoot. The sum of students in 2003, 4 and 7, 8. Same bar graph. Sum of students in 2003, 4 and 7, 8. Okay. 2003, 4 में students देखो, 2007, 8 में students देखो, उनका sum करो. Okay, 350, 100, 450 और 200. Two 2003, 4 and 7, 8. Okay, 450. Very good, right? 100 plus 350. Now let us check today's podium. On third, we are having Samar. Second, Jalin. And on first, any guesses? Shivansh. Shivansh, Jalin, Samarth, and Rohan and Varsha. These are top 5 students for today. Shivansh, Jalin, Samarth, Rohan, and Varsha. So congratulations, everyone. So this is it for today's class. Okay. So bye, everyone. Have a great day. Okay. See you in next class. See you on Monday, right? Just be ready with your homework. Bye, everyone.